زندگی کی لمبی سڑک پر چلتے کردار اور کرداروں سے جڑی کہانیاں قدم قدم پر جہاں ہمارے ہوش اڑاتی ہیں، وہیں زندگی کے ڈھنگ اور طور طریقے سکھاتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ امتحان در امتحان اور کامیابی در کامیابی، جانے کتنی ہی کہانیاں تاریخ کے ماتھے پر انمٹ نقوش بناتے ہوئے گزر جاتی ہیں۔ ایسی ہی ایک کہانی کلثوم ہزارہ کی ہے، جس کی زندگی کا پہلا امتحان 1.5 برس کی عمر میں اس وقت شروع ہوا جب اچانک اس کی والدہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئی، اور یوں کلثوم نے ماں کے بغیر زندگی کی انگلی تھام کر چلنا سیکھا۔ جب میں 1.5-2 سال کی تھی تب میری امی کی ڈیتھ ہو گئی، ان کو کینسر تھی۔ بہت افسوس ہوا سن کر۔ بس جی، اللہ کی مرضی۔ میں تو اس معصوم کے لیے سوچ کے پریشان ہوتا ہوں، اسے کیا معلوم۔ حوصلہ رکھے، اس کے کاموں میں بہتری ہوتی ہے، اس کے لیے آپ پریشان نہ ہو، قدرت نے اس کے لیے کچھ اچھا ہی سوچ رکھا ہوگا۔ جی میں جانتا ہوں، پھر بھی ماں کی کمی کون پوری کر سکتا؟ وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن قدرت کے فیصلوں کو کون چیلنج کر سکتا؟ جب میں 7-8 ایئرس کی تھی، آئی تھنک، مجھے صحیح طرح یاد بھی نہیں ہے، تب ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر جو میرے بہنوئی ہے، جو میرے کراٹے ماسٹر بھی تھے، وہ ہماری طرح سے گارڈین بھی تھے، اور ان کو بھی میرے پیرنٹس نے ہی پالا تھا، مطلب ایڈاپٹ کیا تھا ان کو بھی۔ اور پھر جب پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر وہی ہمارے سرپرست بن گئے، اور انہی کے ساتھ پھر ہم لوگ کوئٹہ سے، جو وہاں پہ حالات ہماری کمیونٹی میں لے کے حالات جہاں خراب ہوئے، دین وہاں سے ہم لوگ کراچی موو کیا ہم لوگوں نے۔ 1.5 برس میں ماں سے جدا ہونے والی کلثوم اپنی عمر کے 7ویں برس کی دہلیز بھی طے نہ کر پائی تھی کہ اس دوران اچانک والد کے سائے سے بھی محروم ہو گئی۔ کھیلنے کی عمر بھی پوری طرح نہیں آئی تھی کہ اس نے ایک کے بعد ایک رنج اٹھایا، اور اس کے باوجود مسکراتے ہوئے زندگی سے ہاتھ ملایا۔ والد کے انتقال کے بعد کلثوم اور اس کی بہنوں کی کفالت کی ذمہ داری اس کے بہنوئی کے کاندھوں پر آ گئی، جسے انہوں نے بخوبی نبھانا شروع کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ آپ ہی بھائی آ گئے؟ السلام علیکم۔ السلام۔ آپ آ گئے؟ کیا ہوا؟ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ ہاں یار، سارا دن دکانداری، کوئی کلب، ٹریننگ، تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ بھائی آپ پریشان مت ہو، کل سے میں بھی جاؤں گی آپ کے ساتھ کراٹے سیکھنا۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں، اس سے اچھی اور بات کیا ہوگی؟ کیا تم کلب جاؤ گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کا کیا ہے، کہہ دے تو کہہ دے دو، کراٹے سیکھنے جا رہی، کون سا ڈانس سیکھنے جا رہی۔ ارے لوگوں کا کیا خیال رکھنا یار، اپنا آپ ٹھیک رکھو، باقی سب خیر ہے۔ گڑیا ہماری بول تو رہی ہے کہ کراٹے سیکھنے جائے گی، کوئی ڈانس تھوڑی۔ آپ دونوں بھی نا؟ اچھا بات سنو، بہت بھوک لگی یار۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ہاتھ میں دھو لیجیے، میں کھانا لگاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور بھائی کیا ہو رہا ہے؟ بھائی کل کا پکا ہے نا؟ کلثوم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی، وہاں لڑکیوں کا کسی بھی اسپورٹ میں آنا معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن کلثوم نے پرواہ کیے بغیر مارشل آرٹ سیکھنا شروع کر دیا۔ اگرچہ یہ سب اس کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ ایک طرف خاندان والوں کی باتیں اور دوسری طرف معاشرے کی بھیڑیا نگاہیں، لیکن اس کے باوجود کلثوم نے اپنے ارادے پکے رکھے اور وہ مارشل آرٹ کرتی رہی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بیٹا کیسی ہو؟ جی میں بالکل ٹھیک۔ کیا کر رہی ہو آج کل؟ کچھ نہیں، بس آج کل کراٹے سیکھنے جا رہی ہوں۔ بیٹھے۔ ایک بات پوچھوں؟ کیا یہ کراٹے سیکھنے جاتی ہے کلثوم؟ جی جاوید بھائی، ماشاءاللہ بہت محنت کرتی ہیں اور بہت پھرتیلی ہیں۔ اچھا جی۔ اچھا، یہ کام اس کو ویٹ دیتا ہے کیا؟
लड़की बात है, कल को पराए घर भी जाना है इसको। जावेद भाई, पराए घर जाने से कौन रोक रहा है? ये तो एक फन है, अगर सीख लेंगी तो मुस्तकबिल में इनके किसी ना किसी काम आ जाएगा। ऐसी लड़कियों के रिश्ते नहीं आते, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जावेद भाई, लोगों का काम ही बातें करना है। खैर चले, जैसी आपकी मर्जी, हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इन बातों का। चाय तो, अरे चाय लाओ भाई। तो कितनी देर से मेहमान इंतजार करें, चाय चाय दे भाई। कुलसूम जहां एक तरफ खानदान वालों की बातें सुन और सह रही होती है, वहीं दूसरी तरफ आते जाते गली मोहल्लों में भी इस पर आवाजें कसने वाले कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन वो सबकी बातों को खातिर में लाए बगैर अपने ख्वाब के हमरा चलती रही। यहाँ तक कि जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो इसने सबक भी सिखाया, मगर अपने ख्वाब पर समझौता नहीं किया। शर्म आनी चाहिए, इस हरकत पर गैरतमंद शर्मिंदा होते हैं। तुम्हारी तरह दांत निकाल कर हंसते नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, जो गली में दूसरों की माँ बहनों पर आवाजें कसते हैं। बेशरम। अब नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने कराटे स्टार्ट किया, और जब मैं क्लब जाती थी, मैंने कोयटा से स्टार्ट किया। जब मैं वहाँ क्लब जाती थी, मैं अकेली लड़की थी, वहाँ पे कोई भी लड़की नहीं होती थी मेरे साथ। इवन जो मेरे साथ थे वो मेरी उंगली पकड़ के मुझे लेके जाते थे क्लब, और वहाँ जब मैं ट्रेनिंग कर रही होती थी, बहुत सारे लड़के थे मुझे तंग करते, चिढ़ते थे कि अकेली लड़की आके कराटे कर रही है। फिर जो मेरे साथ थे वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि लाइक इनकी बातों पे तवज्जो मत दो, अपनी ट्रेनिंग पे कंसंट्रेट करो, इंशाल्लाह बहुत आगे बढ़ जाओगे एक दिन। अच्छी तरह याद है जब मेरी बहनोई के मुझे पता चला कि उनका टारगेट हुआ है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त था। क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई, मुझे नहीं पता था कि लाइक मैं बहुत छोटी थी, मुझे कोई पता नहीं होता था कि मतलब लाइक डेथ क्या होता है, आपके पेरेंट्स की डेथ हो गई है। लेकिन वो जो रियल में मुझे पता चला, जब मुझे मेरे बहनोई के बारे में पता चला, तो मुझे अच्छी तरह याद है मैं शायद वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और मैं पूरी रात हॉस्पिटल में रही। अगले दिन जब जाके मुझे होश आया था, जब उनके तदफीन वगैरह के टाइम हुआ था, तो वो मरहला बहुत मुश्किल था। और उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, हमारा क्लब बंद हुआ और हमें बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। मेरी जो दोनों सिस्टर है, मेरी एक सिस्टर एम्ब्रॉयडरिंग का काम करती थी। कुलसूम की जिंदगी अब एक बहाव में चल रही थी। अगरचे इसका ख्वाब मार्शल आर्ट के साथ साथ डॉक्टर बनने का था, लेकिन डॉक्टर बनने का ख्वाब तीसरे इम्तिहान की सूरत में कुलसूम की आंखों में किरचियां बनकर उस वक्त बिखर गया जब इसकी जिंदगी का वाहिद सहारा, इसके बहनोई को भी कत्ल कर दिया गया। पहले वाकयात ने तो शायद कुलसूम की जिंदगी को इतना मुतासिर नहीं किया था जितना इस वाकये ने किया, लेकिन ये इम्तिहान कुलसूम की जिंदगी में एक अहम मोड़ साबित हुआ। आप ही बस कर दो, कब तक इस तरह रोती रहोगी? कुछ भी नहीं रहा जिंदगी में, सब कुछ खत्म हो गया। आप तो जानती है ना, अम्मी अब्बू के बाद मेरी अम्मी और मेरे अब्बू दोनों ही सरवर भाई थे। अम्मी अब्बू के जाने के बाद मैं इतना नहीं टूटी जितना भाई के जाने पर टूटी। लेकिन शायद कुदरत ने हमारे हिस्से में ही ये इम्तिहान रखे थे। अब हमें उठ खड़े होना है और माशरे से कदम ब कदम मिलाना है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरे बस में कुछ नहीं है। आप ही इस तरह से रोना भाई के लिए अजियत का बाइस होगा। बस कर, प्लीज चुप हो जाए। बहनोई के इंतकाल के बाद
कुलसूम ने अपना डॉक्टर बनने का ख्वाब एक तरफ रखा और अपने बहनोई का ख्वाब मुकम्मल करने और मार्शल आर्ट के मैदान में नाम करने की ठानी। बस इसी सोच और फैसले के साथ ही कुलसूम के दिन रात का महवर एक ही बन गया, और वो था मार्शल आर्ट में अपने और अपने मुल्क के लिए नाम पैदा करना। जब जैसे मैं कराटे को इतना खास कोई सीरियस नहीं लेती थी, मेरी पर्सनली विश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और जाहिर है जो मेरे हालात थे उस वक्त मैं उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने कभी एजुकेशन को भी साथ साथ कंटिन्यू रखा। और इसी तरह मेरे जो बहनोई थे, जो मेरे उस्ताद, उनकी विश थी कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान के लिए मेडल विन करूं। तो जब वो उनकी डेथ हो गई और मैं काफ़ी इस चीज़ को सीरियस ले लिया कि मैं चाहे अगर वो उनकी विश, जब वो जिंदा थे तो मैं उनकी विश पूरी नहीं कर सकी, अब मैं उनकी विश पूरी करूं। तो इस चीज़ को लेके मैं कराटे को काफ़ी सीरियस लेके आगे बढ़ी। और इसी तरह मुझे एक वक्त याद है जब हमारा क्लब बंद हुआ था तो मैं अकेले घर में ट्रेनिंग करती थी, खुद एक कमरे में बंद होके। बहनोई के इंतकाल के बाद कुलसूम ने मार्शल आर्ट की फील्ड संभाल ली। एक बहन ने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया, जबकि एक और बहन ने एक इदारे में फारसी पढ़ाना शुरू कर दी। यूं गिरते निजाम के साथ साथ कुलसूम का पूरा ध्यान अब कौमी सतह पर नाम बनाना बन गया था। वो इसके लिए दिन रात एक किए हुए थी। कुलसूम ने अपनी मेहनत और लगन से नेशनल सतह पर कई मुकाबले अपने नाम किए, साथ ही वो साउथ एशियन चैंपियनशिप के लिए भी नामजद हो गई। और देखते ही देखते इसे इसके ख्वाब भारत की सरजमीन पर ले जाने लगे, जहां वो अपने मुल्क कौम का सर बुलंद करने के लिए पुरअज़्म दिखाई देने लगी। आप ही मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि सरवर भाई के ख्वाब को मुकम्मल कर सकूं और इस मिट्टी के फर्ज को अदा कर सकूं। मुझे यकीन है कि तुम जरूर कामयाब होगी। काश सरवर जिंदा होते। ये सोचकर तो मैं भी ढेर हो जाती हूँ। चलो तुम खैर से जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। आप ही मुझे यकीन है कि ये चैंपियनशिप मेरी ही होगी, इंशाअल्लाह। मैं चलती हूँ। कहते हैं जब इंसान का ख्वाब सच्चा और अज़्म पक्का हो तो उसे दुनिया की कोई ताकत कामयाबी से नहीं रोक सकती। कुलसूम की जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव ने इसे मजबूत से मजबूत तरीन बना दिया था। यही वजह थी कि कुलसूम ने साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल में हैट्रिक की और 3 बार चैंपियनशिप अपने नाम करके न सिर्फ अपने बहनोई को खुश किया बल्कि अपने मुल्क और कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं नेशनल टीम में आ गई और मैंने पाकिस्तान बाबडा को ज्वाइन किया। तो फिर इसी तरह फिर मैं आगे इंटरनेशनल लेवल पे गई। और मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं फर्स्ट टाइम जा रही थी इंडिया, फर्स्ट टाइम जब मैंने गोल्ड मेडल विन किया तो उसके बाद मैं काफ़ी रो रही थी कि जो मेरे सर है काश वो यहाँ होते, वो मुझे देखते। जब मैं रिंग से इंडिया की लड़की को नॉकआउट करके जब मैं बाहर आई तो मेरी जो फ्रेंड है उसको हक करके मैं रो रही थी कि काश मेरे उस्ताद आज यहाँ होते, उनकी मैंने विश पूरी की है आज। तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट था। बिलाशुबा कुलसूम जैसी खवातीन मिसाल हैं उन लोगों के लिए जो वक्त और हालात से शिकायतें करते करते जिंदगी गुजार देते हैं मगर कुछ नहीं कर पाते। कुलसूम की सारी जिंदगी अगरचे मुश्किलात और इम्तिहानात से भरी पड़ी है मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने ख्वाबों की राह पर गामजन रही और यही मुस्तकिल मिजाजी न सिर्फ इसे कामयाबी की मंजिलों तक ले आई बल्कि वो लोग जो कल तक इसके खिलाफ थे उन्हें भी इसके करीब ले ही आई। और आज कुलसूम अपने रिश्तेदारों में ही नहीं बल्कि मुल्क और कौम के लिए बाइसे फख्र है। 17 ईयर्स से मैं अपने वेट कैटेगरी में नेशनल चैंपियन हूँ। और जैसे हमारे जो टफ ओपोनेंट होते हैं वो पाकिस्तान आर्मी होते हैं, उनके साथ हमारे बहुत ज़्यादा फाइनल टफ होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वेट कैटेगरी में चैंपियन हूँ। इसी तरह साउथ एशियन लेवल पे मैंने जैसे 7 कंट्रीज़ होते हैं उसमें मैंने इंडिया, श्रीलंका, नेपाल वगैरह, अफगानिस्तान सारे कंट्रीज़ होते हैं उनको हराया है। और साउथ एशियन लेवल पर मैंने गोल्ड मेडल का हैट्रिक किया है। और अभी रिसेंटली मैंने साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड
میڈل ون کیا ہے اور ایک سلور میڈل ون کیا ہے پاکستان کے لیے. اسی طرح میں نے ایشین چیمپئن شپ میں, اسلامک گیمز میں, ساؤتھ ایشین گیمز میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے, اور کراٹے سیریز 1 اور لیگز وغیرہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. ہاں بھائی, بہت شوق ہے تجھے لڑکوں کو مارنے کا. 1 by 1 آؤ گے یا تینوں ایک ساتھ؟ ابے جا, بہت دیکھے تیرے جیسے.